Hello class, welcome to all of you on this channel. So for today's topic is under discussion. It is the dipole moment and molecular structure, or it is also known as dipole moment and chemical constitution. So the applications of dipole moment are as below. The first application is in comparing the degree of polarity in molecules. So for dipole moment ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ different molecules ਦੇ ਵਿੱਚ compare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ degree of polarity. So HF, HCl and HBr ਇਹਨਾਂ ਦੀ dipole moment given है. So on moving down the group the dipole moment decreases. So अगर dipole moment decrease हो रहा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ polar factor ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ decrease ਹੋਊਗਾ. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ dipole moment ਦੀ help ਨਾਲ different molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ polarity ਹੈ ਉਹਨੂੰ compare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Second is ionic character in a molecule. So dipole moment ਦੇ help ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ percent ionic character ਹੈ. So percentage ionic character find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ formula ਹੈ. Percentage ionic character is the ratio of observed dipole moment to the dipole moment for complete electron transfer. Means percentage ionic character लिया है observed dipole moment upon dipole moment for complete ionic character into 100. तो जिवें एक एग्जांपल है HCl molecule. So HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ observed dipole moment ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ 1.07 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100% ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100% ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਟੋਟਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤੇ ਟੋਟਲੀ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਫਟ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 100% ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ on each atom hydrogen and chlorine ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4.8 into 10 raised to -10 ESE. So ਹੁਣ dipole moment ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 100% ionic character means mu for ionic ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ charge into distance. So charge into distance put ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ finally value ਹੋਗੀ 6.12 debye and जो observed dipole moment of the value ਸੀ 1.07 debye. तो percentage ionic character ਦੇ ਲਈ observed dipole moment upon the dipole moment for complete ionic character into 100. So इस तरह ਆਪਾਂ dipole moment ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ percentage ionic character find out कर सकते हैं अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ observed ਦੀ value given है ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ charge the distance ਵੀ ਕੀ ਹੋਗਾ given ਹੋਗਾ. Okay, so these are two applications for dipole moment and the third is shapes of molecules. ਆਪਾਂ dipole moment ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ molecules ਦੀ ਜਿਹੜੀ shapes ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ predict ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So this is also very important applications of dipole moment. So shapes of molecules ਦੇ ਲਈ first ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ diatomic molecules. Diatomic molecules मतलब ਉਹ ਵਾਲੇ molecules ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ dipole moment ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ because ਜੋ diatomic molecules ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ shape ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ irrespective of the value of their dipole moment. ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ shape ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ. ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ polyatomic molecules ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ dipole moment ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ in predicting the shapes of the molecules because ਕੀ ਹੁੰਦਾ in case of polyatomic molecules ਜਿਹੜੀ dipole moment ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ individual ਜਿਹੜੇ atoms ਨੇ ਜਾਂ individual bonds ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ 3D ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ dipole moment ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਫ dipole moment of various bonds. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ the total dipole moment of a molecule is the
vector sum of dipole moments of various bonds present in molecules. ठीक है, सो फर्स्ट आप इस केस दे विच गल करते हैं ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की. सो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एज इट्स अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स नेम. सो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जिन्हां दे विच 3 एटम्स होण. सो उस केस दे विच एक फर्दर ए टाइप आ जाती है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग 0 डायपोल मोमेंट. सो अगर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ने ते जिन्हां दी की 0 डायपोल मोमेंट, तो उस केस दे विच की होगी और 0 डायपोल मोमेंट क्यों होगी? ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपां शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नु प्रेडिक्ट करना विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट. सो अगर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ने ते उस दे विच ਉਹ ਵਾਲੀ टाइप है जिस दे विच ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे कोल 0 डायपोल मोमेंट है, तो ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ਉਹਨਾਂ मॉलिक्यूल्स ਦੀ ज्योमेट्री की होगी लीनियर. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की ट्राईएटॉमिक एटम्स ने 3 एटम्स ने 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन. सो इस केस दे विच की लीनियर ज्योमेट्री हुंदी है. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे तो इस वे नाल हुंदी है. तो इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड हुंदी है, इस दी इस साइड हुंदी है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली साइड हुंदी है, तो इस दी डायरेक्शन इधर होगी, इस दी इधर होगी. तो ओवरऑल जब आप म्यू की वैल्यू देखांगे ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू की हो जाएगी इस केस दे विच 0 हो जाएगी. बिकॉज आपां की लिखिया सी कि टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड्स. वेक्टर सम का मतलब आप डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है. सो इस केस दे विच अगर इस दी डायरेक्शन की राइट हैंड साइड है, इस दी की लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसकी जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू की होगी 0 होगी. ठीक है, ये ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे विच ओ वाली एग्जांपल आ गई जिन्हां दे विच की 0 डायपोल मोमेंट है. उस तो बाद की ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग नेट डायपोल मूवमेंट. वो वाले मॉलिक्यूल जिन्हां दे कोल जिहड़ी कुछ डायपोल मूवमेंट होवे. उस केस दे विच मॉलिक्यूल की जिहड़ी स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होगी, की होगी बेंट स्ट्रक्चर होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर. अगर आप वाटर की गल करते तो वाटर के केस दे विच उसकी जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है वो कदे भी 0 नहीं होंगी. ठीक है, बिकॉज जो उसकी स्ट्रक्चर होंगी वाटर की वो इस टाइप नाल होंगी है. तो इस दे विच की होंदा 104.5. ठीक है, मींस ए डायपोल मूवमेंट इधर, ए इधर. तो जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट देखेंगे तो अपवर्ड लाई करेगी. ठीक है जी. सो इस वे दे नाल आपां शेप आ जिहड़े मॉलिक्यूल दी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपां नूं उन्हां दी डायपोल मूवमेंट जिहड़ी वो की होगी पता होगी. सो जिन्हां दे विच 0 डायपोल मूवमेंट है उन्हां दी की होगी लीनियर ज्योमेट्री. जिन्हां दे विच डायपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू है उन्हां दे विच उन्हां दी शेप की होगी वाटर की गल करदे हां जिद्दां की होगी बेंट होगी. सो हुण आपां एग्जांपल करदे हां टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे विच. सो ट्राईएटॉमिक दे विच आपां फर्दर 2 केसेस देख रहे सी. तो टेट्राटॉमिक मतलब AB3 टाइप जिहड़े मॉलिक्यूल्स हुंदे ने. सो इस दियां भी फर्दर 2 जिहड़ियां कैटेगरीज ने. फर्स्ट की AB3 मतलब टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग 0 डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो जिन्हां दे विच 0 डायपोल मोमेंट हुंदी है की एग्जांपल हुंदी है. फॉर एग्जांपल BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड. ठीक है, सो एक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुंदा. इस मॉलिक्यूल दी जिहड़ी स्ट्रक्चर हुंदी है वो की हुंदी है प्लेनर स्ट्रक्चर हुंदी है. प्लेनर स्ट्रक्चर हुंदी है जिस दे विच जिहड़े तीनों बॉन्ड्स ने वो ओरिएंट हुंदे ने
बॉन्ड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0 ਮਿਊ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊ ਹੋਊਗਾ that is resultant dipole moment not the dipole moment of only one bond complete molecules ਦੀ ਜਿਹੜੀ dipole moment ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ resultant dipole moment ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ dipole moment ਇਸ bond ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ upward ਇਸ bond ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ downward similarly ਇਸ bond ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ downward ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ resultant dipole moment ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ठीक है ਹੁਣ A वाली इसकी डायरेक्शन बिलो आ इसकी डायरेक्शन की है अबव ये लीनियर वाला केस हो गया ऊपर नीचे वाली डायपोल मोमेंट आपस में की हो जूगी कैंसल आउट हो जूगी सो म्यू की वैल्यू की हो जूगी 0 सो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे विच जिन्ना मॉलिक्यूल्स दी 0 डायपोल मोमेंट है वो वाले मॉलिक्यूल्स की होंगे प्लेनर स्ट्रक्चर नु की करेंगे एक्वायर करेंगे सेकंड की होगा टेट्राटॉमिक molecules having net dipole moment मतलब जिन्ना दी dipole moment दी वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जांपल अमोनिया सो उन्ना मॉलिक्यूल्स दी जो शेप है वो की होगी पिरामिडल शेप किवें हुंदी है अमोनिया ऐदा हुंदा एंड जो दी तीन एटम्स ने वो इस तरह लाई करते हैं इत्थे की हुंदा लोन पेयर सो कंक्लूजन इज दैट कि अगर अपन डायपोल मोमेंट पता तो आप मॉलिक्यूल्स दी जेडी आ शेप है वो की कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है हुण अपन टेट्राटॉमिक तक कर चुके नेक्स्ट है पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स सो पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स दी एग्जांपल दो गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स सो पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे विच आ जांदा CH4 मीथेन या फिर CCl4 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ शेप ओके जिवें अगर आप मीथेन की गल करते हैं तो जो ये चारों एटम्स लगे होंगे ये सेम डिस्टेंस से लगे होंगे आर यू गेटिंग माय पॉइंट जिवें इहदी अगर आप डायपोल मोमेंट बिलो होगी इसदी की होगी सॉरी टुवर्ड्स कार्बन होगी इसदी भी टुवर्ड्स कार्बन इसदी भी टुवर्ड्स कार्बन तो जो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट लाइक करांगे तो इत्थे आऊगा इन्हां दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट इत्थे आऊगा तो इस वाला बॉन्ड ए बॉन्ड ते बी बॉन्ड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इस करके इन्हां केसेस दे विच म्यू दी वैल्यू की होगी 0 टेट्राहेड्रल शेप केड़ी हुंदी आ टेट्राहेड्रल शेप जे 3D शेप हुंदी है इसकी हिस्ट्री तुसीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री च पढ़ोगे तो इत्थे तुसीं सिर्फ ये याद कर लो कि अगर म्यू दी वैल्यू 0 है ते पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स है इहदा मतलब उत्थे की आ शेप किया टेट्राहेड्रल शेप है and your fourth application is also important that is distinguish between cis and trans isomers so trans ਤੇ cis isomers ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ distinction ਹੈ ਉਹ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ dipole moment for example एक A वाला जड़ा मॉलिक्यूल्स है दोस्तों एक ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है एंड एक होर मॉलिक्यूल्स है उस दे विच की है इदा एटम्स लगे हुए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे हुए क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे लगे हुए इट मींस ये किया सिस आइसोमर ए वाला किया ट्रांस आइसोमर सो जो सिस आइसोमर है उसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो टुवर्ड्स क्लोरीन इसकी भी की होगी टुवर्ड्स क्लोरीन तो जब आप रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट लवांगे तो वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है
बट अगर आप ट्रांस दे लिए देखांगे इहदी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जो आप इन्हां दा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट लवांगे, देखो एक दी डायरेक्शन उधर है, एक दी इधर है, तो इत्थे म्यू दी वैल्यू की होगी 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल की करते हैं, नॉमेनक्लेचर करांगे तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सो इस केस दे विच जो इसका ट्रांस आइसोमर है उसकी डायपोल मूवमेंट 0 है, बिकॉज उन्होंने जो बॉन्ड मूवमेंट है वो की हो जाएगी, कैंसल कर दूंगी एक दूसरे को, ठीक है। एंड जो सिस है उसकी डायपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट टू एप्लीकेशंस आर डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थोमेटा एंड पैरा आइसोमर्स। सो अगर अपने को ऑर्थोमेटा ते पैरा आइसोमर्स ने तो आप डायपोल मूवमेंट की हेल्प नाल आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि केड़ा ऑर्थो आ, केड़ा मेटा ते केड़ा पैरा। सो ऑर्थो दे विच की हुंदा, अगर आप तिन्हां दे विच सेम जगह ते लगा दईए ये वाला क्लोरीन, तो ऑर्थो दे विच सेकंड कार्बन एटम ते लगदा, मेटा दे विच इहनूं छड्ड के इहदे विद रिस्पेक्ट टू ये दूसरी ते लगदा, इस दे विच तीसरी ते लगदा। सो जो पैरा आइसोमर है उसका डायपोल मूवमेंट की वैल्यू तो 0 होंदी है, एंड ऑर्थो वाले दी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा होंदी है एज कंपेयर टू मेटा। सो अगर आपां नूं तिन्हां दी डायपोल मूवमेंट्स पता नहीं तो आप दस सकते हैं भी किहड़ी फॉर्म है, किहड़ा आइसोमर है। सो ये जो वैल्यूज दित्तियां हुई ने ये आपां दस सकते हैं कैलकुलेट करके। इन्हां दे विच एंगल देख लो कितना, इन्हां दे विच एंगल कितना, एंड इन्हां दे विच तां 180 है, इस दे विच कितना होगा 120, इत्थे कितना होगा 60। सो आप एक फॉर्मूला कीता सी रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना, μ1² प्लस μ2² प्लस 2 इंटू μ1 इंटू μ2 एंड cos थीटा। μ1 की आ बॉन्ड मूवमेंट, जिवें इस केस दे विच आपां बॉन्ड मूवमेंट किहड़े बॉन्ड दी लवांगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दी, ठीक है। सो इस वे दे नाल आपां दस सकते हैं। थर्ड की है नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस दे विच आप एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड दी, सॉरी इट्स नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड उसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट है दैट इज 0.17 डिवाइड उस दे लिए वाली दो जड़ियां स्ट्रक्चर्स ने प्रपोज कीतियां गईयां सीगीयां। सो दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड अगर आप इन्हां दोनों स्ट्रक्चर्स का इंडिविजुअली डायपोल मूवमेंट लवांगे तो वो की होगा, हाई होगा। इंडिविजुअल जो डायपोल मूवमेंट हो की होगा, हाई होगा, बट एक्चुअल च आप स्मॉल डायपोल मूवमेंट जो ऑब्जर्व किया। सो इस करके आप दस सकते हैं कि जिन्ना मॉलिक्यूल्स दे विच उन्हां दी 2-3 फॉर्म्स बन रही हैं, उन्हां दा हाई डायपोल मूवमेंट है, बट एक्सपेरिमेंटली और एक्चुअली उन्हां दा डायपोल मूवमेंट घट आ रहा है। इहदा मतलब उस मॉलिक्यूल्स दे विच की होणगियां, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे विच एग्जिस्ट करूगा, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे विच एग्जिस्ट करनगे। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स।